tripolar process, and in this first pole is determining the objectives. Second pole is providing teaching learning experiences to the students, and the third pole is evaluating the object, that how many objectives we have achieved. So today we will learn just a minute, the classroom assessment techniques. I am sharing my screen. Classroom learning assessment techniques. As we know, we provide students teaching learning experiences. हम छात्रों को सीखने के अनुभव प्रदान करते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार से, विभिन्न विभिन्न विधियों से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उनको हम सीखने के अनुभव देते हैं। फिर ये अनुभव देने के बाद प्रश्न उठता है कि क्या उन्होंने इनके द्वारा उनके व्यवहारों में परिवर्तन हुआ। इसको जानने के लिए हमको उन असेसमेंट टेक्निक्स की जरूरत होती है, जिसके द्वारा हम उनके कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कोग्निटिव बिहेवियर्स को असेस कर सकें, उनका मूल्यांकन कर सकें। And what is assessment? This is really a compulsory part of learning because it motivates not only teachers but also students to learn and give them idea to identify the area for improvement. Teachers assess students to fill the gap between their present status of performance and desired outcomes. स्टूडेंट्स के लिए भी ये फीडबैक का काम करता है कि उन्होंने क्या सीखा और कितना अभी उनको इम्प्रूवमेंट करना है, ये वो जानते हैं। और टीचर्स एक गैप को फिल कर पाते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि वो ये असेस कर पाते हैं कि कहाँ स्टूडेंट्स थे जहां से, और अब वर्तमान में जहां पर वो असेस कर रहे हैं तो इन्होंने कितना सीखा, कितना उस गैप को हमारे जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज थी, जो हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए थे, उसने कितना इस गैप को फिल किया है और किस प्रकार से हमने इनके कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कोग्निटिव बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर लिया है, जो हमारे प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स थे उनके आधार पर। तो द असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक टू टीचर्स ऑन व्हाट, हाउ and how much and how well the students are learning. कितना अच्छा और कितना ज्यादा और कितना वो सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में वो असेसमेंट बताता है। The meaning of assessment. This is the process of systematic gathering and organizing data of students' achievement on knowledge, skills, attitudes, values, interests, etc. to refine program and enhance learning. It is used during and after instruction. This is the process of knowing learning outcomes achieved by learners by applying variety of techniques. A teacher can apply variety of techniques like assignment technique, or he can take tests, or the projects, assign projects to the students. He can take viva or practical of students, or the presentations, or through case studies or performances, etc. Now the definition of assessment. National Research Council gave the educational definition of educational assessment in 2001, that educational assessment provides feedback to students, educators, parents, policymakers, and the public about the effectiveness of the educational services. Assessment जो है वो केवल शिक्षकों को या एजुकेटर्स को, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को ही नहीं, बल्कि पॉलिसी मेकर्स को और पब्लिक को भी
जो भी शैक्षिक सुविधाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, या जो शैक्षिक नीतियां हैं, उनके इफेक्टिवनेस के बारे में हमको एक फीडबैक देता है। एलन ने भी 2004 में कहा कि असेसमेंट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एम्पिरिकल डेटा ऑन स्टूडेंट लर्निंग टू रिफाइन प्रोग्राम एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। हमें कितना इस प्रोग्राम में चेंज करना है ताकि स्टूडेंट की लर्निंग और अच्छी हो सके, इसके बारे में भी हमको असेसमेंट से पता लगता है। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स आर देयर? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, assessment may be categorized as formative assessment, summative assessment, and diagnostic assessment. Now, what is formative assessment? Formative assessment, it is the process which takes place during the instruction of student. अध्यापन के समय पर ही जब हम फीडबैक लेते हैं और उसके द्वारा हम स्टूडेंट्स की लर्निंग को जानकर कि कहाँ तक इन्होंने सीखा है, हम अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी में चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ये इसका उद्देश्य होता है। एंड व्हाट इज समेटिव असेसमेंट? Summative assessment is the process to find out students' achievement at the end of the course through grades or marks which are assigned to students according to their performances. Generally used summative assessment for crediting, promoting और certifying और selecting. वर्ष के अंत में, सत्र के अंत में छात्रों को कैटेगराइज करने के लिए, उनको क्रेडिट देने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस प्रकार से समेटिव असेसमेंट का यूज होता है। देन लास्ट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज द प्रोसेस टू नो द स्टूडेंट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज और स्किल। स्टूडेंट्स की वीकनेस को जानकर उसको हम रेमेडियल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई किसी प्रकार की ही फील्स डिफिकल्टी, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से हम जान सकते हैं कि वो वहां कहाँ पर कमजोर है, कहाँ पर उसको क्या चीजें समझने में दिक्कत है, और इस प्रकार उसको जानकर हम रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस या रेमेडियल टीचिंग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। देन there are some terms which are close to assessment. Test is measurement technique which is used to quantify behavior. हमारे behavior को संख्याओं के माध्यम से एक मापने की तकनीक है। This can be done after the instruction had taken place. कभी भी किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस देने के बाद में ही टेस्ट अप्लाई किए जा सकते हैं, और वर्तमान में टीचर्स के द्वारा अधिकांश रूप में टेस्ट का उपयोग या व्यापक रूप में टेस्ट का उपयोग किया जा रहा है ताकि लर्नर्स के बिहेवियर्स के बारे में प्रिडिक्शन कर सके, निष्कर्ष कर सके, उसके बारे में बता सके। देन मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन of an examinee to the extent of degree he possesses. We have variety of instruments that may be used like tests or rating scales or assignments or projects to measure students' behavior. Then evaluation. Evaluation is for making judgment on value or worth of someone or something to improve its effectiveness. Now the classification of assessment techniques. Assessment techniques को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो क्वालिटेटिव या गुणात्मक असेसमेंट और एक क्वांटिटेटिव या परिमाणात्मक असेसमेंट। क्वालिटेटिव असेसमेंट को हम डायरेक्शनल असेसमेंट भी कहते हैं, जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर संकेत करते हैं। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन एज एन आउटकम विदाउट क्वांटिफाइंग। ये हमें कोई परिमाण नहीं बताते, कोई संख्या नहीं बताते, लेकिन उसके बावजूद हमें दिशा बताते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव असेसमेंट फोकसेस ऑन काउंटेबल वैल्यूज एंड इवेल्युएट अ पर्सन्स नॉलेज, स्किल और एनी परफॉर्मेंस।
इसको हम संख्याओं में अभिव्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि 70%, 75%, 75.3%, इस तरह से। Then now the classification of assessment techniques. क्वालिटेटिव जो टेक्निक्स है वो कितने प्रकार की हो सकती है। क्वालिटेटिव टेक्निक्स में क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स यूज करते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स, सेल्फ रिपोर्टिंग, इन सभी टेक्निक्स के थ्रू हम क्वालिटेटिव असेसमेंट करते हैं। क्वांटिटेटिव असेसमेंट में टेस्ट, जिसमें कि ओरल या इंटरव्यू हो सकते हैं या वाइवा से, प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, और रिटिन टेस्ट में ऐसे टाइप टेस्ट हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो सकते हैं। नाउ क्वालिटेटिव असेसमेंट टेक्निक्स। क्वालिटेटिव असेसमेंट टेक्निक में सबसे पहले क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। These are the permanent record of a student which is kept up to date by any institution. इन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में सभी प्रकार की सूचनाएं होती हैं, जैसे अटेंडेंस, उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस, उनके को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेशन के डिटेल्स, उनके इंटरेस्ट, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनका आईक्यू और ईक्यू लेवल, उनके कैरेक्टर्स, उनकी लाइकिंग्स, उनके एडजस्टमेंट लेवल, उनके हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अदर पर्सनल डेटा, वो संपूर्ण पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक संपूर्ण रूप से क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में रहते हैं। नाउ एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। व्हाट आर एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स? These records are short, objective, and descriptive summary of an event of students written after the event has taken place. Schools में स्टूडेंट्स के किसी भी घटनाओं के होने पर जो अनयूजुअल होती हैं, उन स्टूडेंट्स के बारे में ये एनेक्डोट्स लिखे जाते हैं और उनको उनके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में अटैच कर दिया जाता है। It helps teachers to understand students' personality patterns and provide them guidance and counseling accordingly. छात्रों के किन्हीं प्रकार के करिकुलर एक्टिविटीज में, को करिकुलर एक्टिविटीज में उनके जो व्यक्तित्व गुण होते हैं, कभी कभी उनके द्वारा झुंझलाना या कभी पॉजिटिव ट्रेट्स भी दिखाई देते हैं, सपोर्ट करना, इस तरह से कोई भी ऐसे अनयूजुअल ट्रेट्स दिखते हैं तो वो उनको उन इवेंट्स को लिख लिया जाता है। इनके फॉर्मेट लगभग इस प्रकार के होते हैं, जिसमें ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन की डेट, टाइम, स्टूडेंट का नाम और इंसिडेंट। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स लिखते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे इस एक बार में एक एनेक्डोट पर एक ही इवेंट लिखी जानी चाहिए। ये सिंपल हो और एकदम सही हो, एक्यूरेट हो, किसी प्रकार की बायस्डनेस टीचर का इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें सभी प्रकार के व्यवहार नहीं लिखने चाहिए, बल्कि जो टिपिकल हो या अनयूजुअल हो उन्हीं को रिकॉर्ड करना चाहिए। उन्हीं बिहेवियर्स को रिकॉर्ड करना चाहिए जो डायरेक्टली ऑब्जर्व हो, मतलब जो हमने प्रत्यक्ष देखे हैं उनको ही हम रिकॉर्ड करें। किसी के कहे सुने के अनुसार रिकॉर्ड करने से बचना चाहिए। जब कोई इवेंट हो तब हमें तुरंत ही उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाद में एक्यूरेसी में फर्क आ जाता है। ऑल रिकॉर्ड शुड बी कंप्लीट, compliant and properly filled. Then observation. It is an act of perceiving, noticing, viewing or monitoring someone or something and collecting information. As a tool of evaluation, observation is used to assess the cognitive, affective and psychomotor or conative behavior of students by perceiving their activities and responses.
Observation is also useful for assessing behaviors of young and shy learners, mentally retarded, and children of other special needs. कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं बच्चे जो एक्सप्रेस नहीं करते चीजें, तो उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके हम उनके एटीट्यूड्स को और उनके अन्य जो ट्रेट्स हैं उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कई टाइप के ऑब्जर्वेशन होते हैं, प्लान्ड या नियोजित और अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड, नियंत्रित एवं अनियंत्रित ऑब्जर्वेशन। प्लान्ड ऑब्जर्वेशन जिसकी प्लानिंग पहले से की कर ली जाती है, अनप्लान्ड जो अचानक से ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं विदाउट प्लानिंग, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो प्रत्यक्ष हो, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं हो कि उनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है और उनका ऑब्जर्वेशन हो इस प्रकार से, पार्टिसिपेंट किसी इवेंट में या किसी चीज में पार्टिसिपेशन करते हुए ऑब्जर्वेशन किया जाए, नॉन पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेशन न करते हुए ऑब्जर्वेशन किया जाए, कंट्रोल जब ऑब्जर्वेशन के बारे में पहले से ही कुछ चीजें तय कर ली जाए, कुछ मानक तय कर लिए जाए, स्टैंडर्ड तय कर लिए जाए और उनकी रिकॉर्डिंग हो, वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होते हैं। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जिसको कि नियंत्रित नहीं करते पहले से, वो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होते हैं। कौन से ऑब्जर्वेशन किए जाए ये डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है, हम क्यों ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम उनका चयन कर सकते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे ऑब्जर्वेशंस हमेशा ही सिलेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, पर्पसिव हो, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक हो, रिकॉर्ड किए जाए, ट्रेन्ड पर्सन द्वारा हो, वेरीफाई किए जा सके और अनबायस्ड हो। फिर रेटिंग स्केल, this is a device of evaluation where the opinion of judgment regarding any situation, character or behavior is expressed on a scale. एक स्केल पर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं उस इवेल्युएशन को। A teacher indicates the degree of frequency on the behavior or skills displayed by the student. Rating scale may be defined as a set of categories designed to elicit information about the qualitative or quantitative attributes. दोनों ही प्रकार के व्यवहारों पर, चाहे वो क्वालिटेटिव हो, गुण हो, चाहे क्वांटिटेटिव हो, उस पर हम रेटिंग स्केल्स के थ्रू असेस कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल, सबसे पहले चेकलिस्ट। चेकलिस्ट इज यूज्ड टू नो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ ट्रेट इन अ लर्नर। There are some statements indicating presence or absence of the particular trait. A teacher observes the behavior of student and give decision on checklist. कि स्टूडेंट में ऐसा है क्या, है तो यस टिक, नहीं है तो क्रॉस, चेकलिस्ट होती है। न्यूमेरिकल स्केल, in this scale each statement is assigned a numerical score like 1 2 3 4 5 6 7 like this. It may be 5-point scale, 7-point scale, 10-point scale and vary. Teacher rates a student to the extent as the trait is seen in his behavior. कि कितना उसके बिहेवियर में वो ट्रेट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं है, थोड़ा माइल्ड है, मॉडरेट लेवल का है, सीवियर है। ये हम लोगों ने माइक्रो टीचिंग में यूज किया है इसको। Graphic scale. In this scale, the presence or absence of a trait is demonstrated on a horizontal line which displays the trait from lowest to highest. ग्राफ पर इसको शो करते हैं, सेम चीज है। Then self-reporting technique. This technique is used to ask student about their thoughts, feelings, attitudes, beliefs, behaviors, etc. And student can express themselves through paper pencil mode और via electronic media. हम इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चनर भी यूज कर सकते हैं जिसमें छात्रों को आजादी होती है कि वो उसमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, या इंटरव्यू टूल भी यूज कर सकते हैं। और हम स्टूडेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए स्टूडेंट स्वतंत्र होते हैं। देन क्वांटिटेटिव असेसमेंट, परिमाणात्मक असेसमेंट।
इसमें ओरल, वाइवा या इंटरव्यूज, इस प्रकार के असेसमेंट में वाइवा या इंटरव्यू के माध्यम से टीचर कुछ प्रश्न पूछता है छात्रों से और छात्र उसके जवाब देते हैं। उसके माध्यम से हम छात्रों के उस पर्टिकुलर विषय में ज्ञान को एसेस करते हैं। ओरल टेस्ट may be conducted to evaluate students' ability to present his knowledge in a well organized and cogent manner. Oral tests are generally subjective in nature. इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी कुछ बच्चे जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो उनको नॉलेज होने के बावजूद वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है। प्रैक्टिकल और परफॉर्मेंस टेस्ट, these are concerned with testing students' skill in a particular setting like laboratory, field, school, or any other setup. These are conducted to take the feedback that how well can students implement theoretical knowledge in real situations. And practicals can be administered individually as well in a group also. Now written test. Written tests are the set of questions where students respond on the particular items through written verbal expressions. It may also be administered on a computer. Written tests are the most popular and commonly used by the teacher to get feedback on learning. There are so many types of written tests we may administer. On the basis of administration, we can classify written tests on group tests and individual tests. On the basis of test items, we can again classify it on standardized tests and non-standardized tests. Non-standardized tests, which are also called teacher-made tests, and standardized tests, which are constructed on a standard with its objectivity, reliability, validity, usability, and interpretability. On the basis of test items, we can also classify tests in two categories, speed test and power test. When the students are required to respond to the item with speed and accuracy, and power test when tests are to measure students' ability on responding more difficult item. डिफिकल्टी लेवल को देखने के लिए पावर टेस्ट और स्पीड के लिए कि कितनी एक्यूरेसी के साथ कितना अधिक कर सकते हैं स्पीड देखने के लिए स्पीड टेस्ट. On the basis of objectives, norm reference test and criteria reference test. Then on the basis of evaluation, subjective test और essay type test, objective test. Subjective test जहाँ पे students को स्कोप होता है रिस्पॉन्ड करने के लिए और जहां पर कि उनके एक्सप्रेशंस, उनकी क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी और उनका सब्जेक्ट के प्रति नॉलेज को हम चेक कर सकते हैं एज एन एग्जामिनर. ऑब्जेक्टिव टेस्ट जहां पर स्टूडेंट्स आर लिमिटेड टू रिस्पॉन्ड विद इन गिवन चॉइसेस. नो बायसनेस ऑफ एग्जामिनर्स फॉर स्कोरिंग. इवन कंप्यूटर कैन चेक दिस टाइप ऑफ टेस्ट. Now, characteristics of subjective test. Subjective tests are easy to construct and administer. आसानी से बन जाते हैं, आसानी से प्रशासित किए जा सकते हैं. Learners, organization and presentation of thoughts in logical manner can be evaluated. Suitable for all subjects. किसी भी subjects पे आराम से आप इसको prepare कर सकते हो. Evaluation, criticism, interpretation type objectives can be measured only by subjective test, and it also motivates students to induce good habits like organizing, comparing, narrating, summarizing, etc. Now, limitation of subjective test. No coverage of full course. पूरे कोर्स के ऊपर इसको बेस नहीं किया जा सकता. स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड फॉर सिलेक्टिव रीडिंग. वो स्टूडेंट्स को भी पता होता है, वो पर्टिकुलर एक सिलेक्टिव स्टडी करने लगते हैं कि इसमें तो ये तो फंस ही जाएगा. जैसे पहले हुआ करता था कि 5 प्रश्न करिए, कोई भी 5 प्रश्न करिए तो लोग सोचते थे कि
6 यूनिट है या 7 यूनिट है, तो अगर 5 कर ली प्रिपेयर तो ये फंस ही जाएंगी, दो तो वो मिलता ही है उनको चॉइस के लिए। Scoring may be affected by good handwriting, neatness, length of answer, grammar, etc. ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। Scoring is less reliable and less valid. अलग अलग एग्जामिनर्स एक ही प्रकार की आंसर शीट पे अलग अलग प्रकार से स्कोर देते हैं। Moods of examiners, his personal biasness, his favoritism, his weightages to different aspects of answers may also be affect the scoring values. Now the characteristics of objective test. These are objective in nature, comprehensive representation, it has the reliability, high validity. These are easy to score and practicability. It may be administered on a huge mass also, but there are also some limitations of objective tests that students have no space for expression, and it is very difficult to evaluate high level mental abilities like synthesis, evaluation, creation, imagination, etc. The chances for students to anticipate answers, sometimes they guess, and their guess sometimes was correct. So it is also a very severe drawback. It is difficult to construct and take a lot of time. It is also costly, and standardization of tests is a complex process. Now we can classify the objective test in two categories: supply type and selective type. The supply type uh, objective tests are called the recall type, where students have to recall the answer and fill. In these categories, fill in the blanks may be the option, or answer in one word or simple recall. In selective type, where the student has to recognize the right option, MCQs are the most popular. Matching type, true or false, correct, incorrect, classification, odd one out. These are the other types of recognition type or selective type objective test. Now some interesting and innovative classroom assessment techniques are there. Strengthening question, strategic questioning. Asking high order questions to students and require more in depth thinking. स्टूडेंट्स को ये पूछना कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, किसी भी चीजों के ऊपर स्टूडेंट से इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो इस प्रकार के प्रश्नों में छात्र स्वतः विचार करते हैं और इस प्रकार से जो हाई ऑर्डर मेंटल एबिलिटीज हैं उन पर उनकी प्रोसेस होती है और उनको हम असेस कर सकते हैं। 3-way summaries, where students have been asked to present summary of what they learned in particular topic in 10 to 50 words or 30 to 50 words और 75 to 100 वर्ड्स लॉन्ग। हम स्टूडेंट्स को कोई भी चीजें प्रेजेंट करने के बाद उसके बारे में क्लास के बाद उसके बारे में समरी के लिए हम उनको बोल सकते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद उनको उस पर एक समरी प्रेजेंट करने के लिए बोल सकते हैं और वो टॉपिक के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग 10 से 15 शब्द की, 30 से 50 शब्द की या 75 से 100 शब्द जितनी लंबी या अकॉर्डिंगली हो सकती है। थिंक पेयर शेयर, after posing a question to students, they are placed in the pairs to discuss the responses, then they share it to the class. हम बच्चों को एक प्रश्न पूछकर स्टूडेंट्स को इस प्रकार प्लेस कर सकते हैं कि वो अपने पेयर के साथ में उसको डिस्कस करें रिस्पॉन्सेस को और फिर वो पूरी क्लास को शेयर करें। इस प्रकार की चीजें कोऑपरेटिव लर्निंग का पार्ट भी हो सकती हैं और एक नए प्रकार का असेसमेंट और जिसमें कि छात्र सीखने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, हो सकती है। 3, 2, 1 countdown. At the end of learning, students are asked to respond 3 statements. 3 things you didn't know before,
टू थिंग्स दैट सरप्राइज्ड, वन थिंग यू वांट टू स्टार्ट डूइंग, इस तरह से। या फिर रूब्रिक्स, जिसमें टीचर स्टूडेंट को ग्रेड करता है बाय स्पेसिफिक कंपोनेंट विद अ पॉइंट and value in a grade in predefined manner. It helps students to check their work before submitting, understand assignment and scoring system, and receive meaningful feedback. Thank you, students.